Kublai Khan by S.T. Coleridge. S.T. Coleridge. कुबलाई खान. लास्ट में थोड़ी सी आवाज छोटी ये की देनी है. कुबलाई खान. प्रोनाउंसिएशन गैदर करेंगे. In Xanadu did Kublai Khan a stately player dome decree, where Elf the sacred river ran through caverns mirrorless to man, down to a sunless sea, so twice 5 miles of fertile ground, with walls and towers were girdled round. Girdled. And there were gardens bright with sinuous rills, where blossomed many an incense-bearing tree, and here were forests ancient as the hills, unfolding sunny spots of grandeur. But oh, that deep romantic chasm, which slanted down the green hill earthward, a saddened cover, a savage place as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by women wailing for her domain lover. And from this chasm, with ceaseless turmoil seething, as if this earth in fast thick pains were breathing, a mighty fountain momently was forced, amid whose swift, half intermitted burst, huge fragments vaulted like rebounding hail, a chaffy grain beneath the thresher's flail. And mid these dancing rocks at once and ever, it flung up momentary the sacred river, 5 miles meandering with a mazy motion, through wood and dale, and the sacred river ran. Then reached the caverns mirrorless to man, and sank in tumult to the lifeless ocean. And mid this tumult Kublai heard from far ancestral voices professing woe. The shadow of the dome of Player floated midway on the waves, where was heard the mingled murmurs. From the fountain and the caves, it was a miracle of rare device, a sunny Player dome with caves of ice. A damsel with a dulcimer in a vian once I saw. It was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played, singing of Mount Tobra. Could I revive within me her symphony and song, to such a deep delight would win me, that with music loud and long I would build that dome in air, that sunny dome, those caves of ice. And all who heard should see them there, and all should cry, be aware, be aware. His flashing eyes, his floating hair. Wave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread, for he on honeydew has fed, and drunk the milk of paradise. इस पोएम के 2 हिस्से हैं. फर्स्ट हिस्से में एस.टी. कॉलेज कहता है, ज़ैनाडू चाइना के अंदर कोई प्लेस है, वहां पर कुबलाई खान जो जंगजू था और बादशाह था, उसने हुक्म दिया था कि ज़ैनाडू के अंदर एक महल तमीर किया जाए. क्लियर? जिस जगह पर वो महल बनाया जा रहा था वहां पर नदियां थी, वहां पर धूप से चमकते हुए कतात थे सब्जे के, वहां पर दरख्त थे जिनके अंदर से खुशबुएं आती थी. वहां पर महल बनाया गया और वहां पर एक रिवर बहता था जो कि लहराता हुआ दरख्त पहाड़ों के दरमियान में से गुजरता था और गहरी गारों में से गुजरता था, और वहां पर बर्फ की गारें थी
और वहां पर वो कुबलाई खान का चमकता हुआ, धूप में चमकता हुआ वहां पर महल था। कैसा डिस्क्रिप्शन है, अच्छा है ना, मजे का है ना, खूबसूरत विजन क्रिएट किया है। कुबलाई खान कहता है, वो सॉरी एसटी कॉलेज कहता है, वो कहता है ये मंजर आप देख रहे हैं, एक बार मैं ख्वाब में एक लड़की को देखा था जो कि हबशा की लड़की थी और वो अपनी डोलसिमर पर गीत गा रही थी। इतना कमाल गीत था वो, इतनी प्यारी रिदम थी। अगर मैं उस गीत को रिवाइव कर लूँ अपने जहन के अंदर तो मैं वहीं बर्फ़ की गारें, वहीं धूप से चमकता हुआ महल, वहीं सरसब्ज और शादाब एरिया सारा का सारा हवा में खड़ा कर दूंगा। एसटी कॉलेज। नाउ अब आप मुझे बताएं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो वो कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि मैंने ख्वाब में एक लड़की की आवाज़ सुनी थी, उसका गीत इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि अगर मैं सब उसकी रिदम याद कर लूं तो मैं पूरे के पूरे एक लैंड, एक पीस, एक खूबसूरत एरिया को हवा में खड़ा कर दूंगा। उस गीत की ताकत इतनी होगी। आपको याद है विलियम वर्ड्सवर्थ सोलिटरी रीपर, उसके लड़की का गीत इतना अच्छा था कि बुलबुल से भी ज़्यादा अच्छा था, इतना अच्छा था जैसे कोयल से भी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अब उसने क्या कहा, ये गीत एसटी कॉलेज अब अपना लिख रहा है कि मैंने कौन सा गीत सुना है। बेसिकली ये दोनों फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, एसटी कॉलेज और विलियम ववाद, बड़े यारगार थे। उसने लिखा सोलिटरी पर, तो उसने लिखी कुबलाई खान, ओके, कि उसने कहा मेरी लड़की का गीत बहुत अच्छा था, कोयल से अच्छा था, बुलबुल से अच्छा था। उसने कहा ठहरो, मैंने भी एक गीत सुना है, वो गीत की रिदम याद कर लूँ तो मैं मैजिशियन बन जाऊंगा। ठीक है, आइए इसको एंजॉय करते हैं लाइन टू लाइन। ये ड्रीम लाइक पोएम है, इसके अंदर फैंसी वर्क है, मेलोडी इसके अंदर बड़ी अच्छी है, म्यूजिक बड़ी कमाल की है, और इस पोएम को रोमांटिक पोएम कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव पावर ऑफ द पोएट आप नोट करेंगे, पोएट डिस्क्राइब चीजों को कैसा करता है। दरहकीकत समर है, ये 1979 है और एसटी कॉलेज साहब बीमार हैं, और बीमार भी हैं और उन्होंने हफीम का एक फक्का भी खाया हुआ है, यानी कि अच्छी खासी हफीम भी खाई हुई है, और वो एक बुक भी पढ़ रहे हैं, उसका नाम था परचास पिलग्रिमेज। वो उसी लैंड की थी, तातारियों की, मंगोलों की इलाकों की, यानी कि चाइना के इलाके की, खूब से इलाकों की कोई कहानी थी, सफ़रनामा था। सोए हैं, उठे हैं तो फिर ये लिखना शुरू कर दिया है। एंड ज़ैनाडू डिड कुबलाई खान, ज़ैनाडू के अंदर कुबलाई खान ने, क्या लफ्ज़ है, ज़ैनाडू एक ख़याली शहर है जो कि हम कंसीडर करते हैं चाइना वाली साइड पर है, सरसब्ज व शादाब है। कुबलाई खान दर हकीकत में जो कुबलाई खान जंगजू और बादशाह था वो 13वीं सदी में आया था। किसमें? हाँ 1216 में से लेकर 1294 तक। अच्छा, कुबलाई खान ने ज़ैनाडू के अंदर क्या किया, स्टेटली प्लेयर डोम, एक उसने शाहाना प्लेयर डोम इशरत कदा यानी कि महल डिक्री बनाने का हुक्म दिया, कुबलाई खान ने ज़ैनाडू के अंदर एक महल बनाने का हुक्म दिया। यहां तक बात क्लियर है। वेयर एल्फ, जहां पर एल्फ नामी द सेक्रेड रिवर, मुकद्दस दरिया रैन बहता था, थ्रू कैवर्न्स, गारों में से, मयरलेस टू मैन, जिनको इंसान पैमाइश भी नहीं कर सकता था। किनको पैमाइश नहीं कर सकता था, उसामा बताएगा। रिवर को नहीं, किसको? मोटी को, बूटी जी, गुलाम भाई, किसको? कैवर्न्स को।
गारों में से कौन गुजरता था? आप बताएं। दरिया। डाउन टू अ सनलेस सी, और ये दरिया जहां जाके गिरता था वो तारीक समंदर था, सनलेस सी। ऐसी जगह जाकर ये दरिया समंदर में जाके मिलता था जहां पर सूरज भी नहीं निकलता था, सनलेस सी था। कैसा पुरस्कार मंजर है कि नाकाबिले पैमाइश गारों में से गुजरता हुआ ये दरिया और जा पहुंचता है ऐसी जगह पर जो इतनी पुरस्कार है, समंदर का वो हिस्सा जहां पर सूरज नहीं निकलता है। ये मिस्ट्री है, पुरस्कारियत। ये रोमांटिक पोइट इस तरह का लिखते हैं। सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, बस ट्वाइस 2 दफा, 5 miles 5 मील 2 दफा, कितने हुए? 10 माइल्स का रकबा ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, जरखेज जमीन का। एक्सक्यूज मी, ये डोर बंद कर दो बेटा। सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, 10 माइल्स का जरखेज जमीन का रकबा क्या कर लिया गया? विद वॉल्स एंड टावर्स वर गेटल डाउन, दीवारों और मीनारों के साथ घेर लिया गया। क्यों घेर लिया गया? बनाने के लिए क्या? महल, इशरत कदा। किसके हुक्म से? कुबलाई खान के। और इस इलाके में, इस जरखेज लैंड में से क्या गुजरता था? दरिया। दरिया किसके अंदर से गुजरता था? गारों के अंदर से। कहां जाके गिरता था? तारीक समंदर में। इस जगह को किन चीजों के साथ घेरा गया? टावर्स के साथ और वॉल्स के साथ। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सीनियस रिल्स, और यहां पर गार्डन थे चमकदार विद सीनियस रिल्स, और बल खाती हुई नदियां थी। यूरोप वालों के लिए ये सबसे बेहतरीन चीजें हैं कि ऊपर धूप चमक रही हो, सब्जे के कतात हों, और फिर चश्मे उबल रहे हों, नदियां चल रही हों। उनके लिए मैजिकल सीन्स हैं। ओके, वहां पर सिर्फ सर्दी है। ठीक कह रहे हैं आप। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सीनियस रिल्स, और वहां पर बागात थे बल खाती हुई नदियों के साथ। कितनी खूबसूरत बात है। वेयर ब्लोजम्ड मैनी एन इंसेंस बेयरिंग ट्री, और जहां पर फलते फूलते थे बहुत सारे खुशबूदार दरख्त। और इस इलाके के अंदर बहुत सारे खुशबूदार दरख्त फलते फूलते थे। एंड हेयर वर फॉरेस्ट्स एंशिएंट एज द हिल्स, और यहां पर जंगल थे इतने कदीम जितनी कदीम चट्टानें होती हैं। इनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, और यहां पर मौजूद थे इनफोल्डिंग, बेहद ताबा, इंतहाई सनी धूप वाले, स्पॉट्स कतात इलाके ऑफ ग्रीनरी, सब्जे के बड़े बड़े धूप से चमकते हुए कतात थे। यहां पर टुकड़े, जमीन के टुकड़े बड़े बड़े। यहां तक पोएट ने क्या कहा, गौर करेंगे आप दोनों। पोएट ने कहा ज़ैनाडू एक इलाका है जहां पर कुबलाई खान ने एक इश्शत कदा बनाने का, महल बनाने का हुक्म दिया। उस इलाके में एक दरिया बहता था। दरिया गारों के अंदर से गुजरता हुआ सनलेस सी में जा गिरता था। यहाँ पर खुशबूदार दरख्त थे, यहाँ पर बल खाती हुई नदियाँ थीं, यहाँ पर रोशन और ताबा, यहाँ पर कतात थे सब्जे के। क्लियर? अच्छा, ये इलाके की डिस्क्रिप्शन उसने दी, और यहाँ पर 10 माइल्स के रकबे को इनग्रेडल्ड किया गया है। फॉर व्हाट? महल बनाने के लिए। बट लेकिन वो याद आया, दैट डीप रोमांटिक खाजम विच सलांटेड, वो गहरा रोमानवी शगाफ विच सलांटेड, जो कि ढलवान पर था। डाउन द ग्रीन हिल की ढलवान पर,
नीचे की उतराई पर आर्थवर्ड अ सैडन कवर, और उसके पहलू में थे सैडन, और वो पहलू में था किसके? सैडन कवर। सनोबर के दरख्तों के पहलू में सरसब्ज चट्टान की सलांट पर वो काज़म था, वो शगाफ था। पोइट को एकदम याद आता है, ओह याद आया, वहां पर एक शगाफ भी जो था, वो सरसब्ज पहाड़ी की सलांट पर जिसके इर्द गिर्द सारे सनोबर के दरख्त फैले हुए थे, उसे वो काज़म याद आ गया। काज़म मीन शगाफ, शगाफ दरार, पहाड़ के अंदर दरार है, दरार के अंदर से बहुत बड़ा चश्मा निकल रहा है, उस दरार को उसने काज़म कहा है। क्लियर? एक पहाड़ के अंदर दरार है, उस दरार के अंदर से पानी निकल रहा है, उसको उसने काज़म कहा है। क्लियर? डाउन द ग्रीन हिल आसवर्ड अ सैडन कवर, और ये शगाफ, ये काज़म था सैडन कवर, सनोबर के दरख्तों के पहलू में आसवर्ड। हाउ सैवेज प्लेस, एक वहशतनाक जगह थी ये। एज होली एंड इंचेंटेड, इंतहाई मुकद्दस और सहरज़दा। उस जगह को देखकर लगता था कि जैसे कोई जादुई जगह हो, जैसे कोई इंतहाई मुकद्दस जगह हो। किसको देखकर लगता? उस शगाफ को, शगाफ को, काज़म को देखकर लगता कि इंतहाई सहरज़दा, इंतहाई मुकद्दस जगह है ये। As ever beneath a waning moon was haunted, जैसे नीचे की तरफ हमेशा यहाँ पर घटता हुआ पीला पड़ता चांद was haunted, आता जाता रहता हो। हाँ, याद आया वो काज़म जो सनोबर के दरख्तों के पहलू में, वो चट्टान के ऊपर, वो ढलवान के ऊपर था। वो एक वहशतनाक जगह थी, वो सहरज़दा जगह थी, वो मुकद्दस जगह थी। ऐसे लगता था जैसे यहां पर पीला चांद नीचे से आता जाता रहता हो। बाय वोमेन वेलिंग फॉर अ डोमेन लवर, जैसे यहां पर कोई औरत बैठी अपने किसी देव महबूब की याद में रोती रहती हो। ये ऐसी वहशतनाक, ऐसी सहरज़दा जगह है जैसे किसी औरत को मोहब्बत हो गई हो, इश्क हो गया हो। किसके साथ? किसी देव के साथ, अफरीद के साथ, और उस देव की याद में वहां बैठी वो मातम करती रहती है, रोती रहती है। आप ऐसे सीन को देखकर क्या कहेंगे? सहरज़दा, वहशतनाक, मुकद्दस भी है, पुरस्कार भी है। और ये सीन आपने कभी देखा भी नहीं है। अनहेयर्ड एंड अनसीन, ये है रोमांटिक पोएट्री क्वालिटी। और ये देखिए फार्मूला, वहीं विलियम वर्ड्सवर्थ वाला फार्मूला लगाया है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। देखो उसे, वो तन्हा है फील्ड में। उसने आपको आपके क्लासरूम से सीधा इमेजिनेशन में ले गया, फील्ड में ले गया। सेम इज द केस। बट ओ, लेकिन वो याद आया, वो काज़म, वो शगाफ जो कि सनोबर के दरख्तों के पहलू में सरसब्ज पहाड़ की ढलवान पर था। सेम फार्मूला लगाया उसने, बिकॉज बोथ वर फ्रेंड्स। मैं पहले बता चुका हूं। यस, देयर वाज अ क्वेश्चन। यस, नादानिया। अच्छा, तो डेमोन का मतलब वो अफरीद, या इसको कहते हैं देव, कहते हैं। देव वाली कहानियां सुनी है ना बचपन में? आप तो पता नहीं नए बच्चे जानते हैं कि नहीं। अच्छा, एंड फ्रॉम दिस काज़म। अच्छा, अब इसमें क्या कहने जा रहा है, देखिए सुनिए। वो कहता है इस शगाफ में से एक चश्मा उबल रहा है, पानी निकल रहा है, और उस चश्मे के अंदर से एक फौरा निकल रहा है मिड में से। उस फौरे के अंदर बड़े बड़े पत्थर निकल रहे हैं, उछल रहे हैं, क्योंकि ये चश्मा ये पहाड़ के अंदर से आ रहा है, गहराई से।
और इसके अंदर से पानी निकल रहा है, पानी के मिड में से एक फौरा है और फौरे के अंदर क्या है? पत्थर। आइए देखते हैं। एंड फ्रॉम दिस काजम, और इस काजम से विद सीजलेस टर्मोल, एक ना खत्म होने वाला टर्मोल, पुरजोश, सीथिंग, फूट रहा था। टर्मोल, पुरजोश। क्या पुरजोश? चश्मा। बुक है बेटा आपके पास? बेटा किसी के साथ हो लो, मैं सुनता हूं अभी सबसे। एक पुरजोश चश्मा, सीथिंग, फूट रहा था। कहां से? शिगाफ। सीजलेस का क्या मतलब है? सीजलेस का रोकना। कल आपने पढ़ा था आई मे सीज, कीट्स ने कहा था, इससे पहले कि मैं बंद ना हो जाऊं, मर ना जाऊं। तो सीजलेस, ना रुकने वाला, एक ना रुकने वाला पुरजोश चश्मा फूटता था। कहां से? शगाफ से। एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक फेंट्स वर ब्रीथिंग, उस चश्मे को देखकर ऐसे लगता था जैसे जमीन तेजी के साथ मोटे मोटे बड़े बड़े सांस ले रही हो। चश्मा इसके अंदर निकल रहा था, बबक रहा था ऐसे। जब ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है चश्मा, तो पोएट को यूं लगता है जैसे ये जमीन का मुंह हो और पूरी जमीन यहां से सांस खींच रही है अंदर की तरफ। पानी बाहर नहीं आ रहा, झटका मार मार के सांस अंदर जा रहा है। ठीक है, यानी कि इससे आपको क्या अंदाजा हुआ जब ये बात की है कि चश्मा बहुत बड़ा था, कि जमीन के मुंह लगता था वो, कि वहां से वो सांस ले रही है। तो चश्मा बहुत बड़ा था। चश्मे का साइज बताया उसने? नहीं बताया। उसने आपके ज़हन को सिर्फ उजागर किया, एक छोटा सा ऐसे सजेस्टिवनेस कहते हैं, सजेस्ट किया आपके जहन को, ऐसे जैसे जमीन वहां से सांस ले रही हो। हर शख्स ने अपनी अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक बना लिया उसको कि पता नहीं कितना बड़ा होगा चश्मा, कि जमीन का मुंह लगता था जैसे जमीन वहां से। एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक फेंट्स, फेंट्स कहते हैं लंबे लंबे, थिक मोटे मोटे, फास्ट तेज तेज, वर ब्रीदिंग सांस ले रही हो। A mighty fountain momently was forced, और एक mighty जोरदार फुआरा, फुआरा फाउंटेन मोमेंटली लम्हा व लम्हा, was forced जोर से निकलता था, आमिड दरमियान से। किसके दरमियान से? Amid whose swift half intermitted burst, और इस फुआरे के दरमियान से, अमिड का मतलब यहां करेंगे इस फुआरे के दरमियान से, चश्मा नहीं, शगाफ, शगाफ के अंदर चश्मा, चश्मे के दरमियान में फुआरा, और फुआरे के अमिड हु स्विफ्ट तेज, हाफ इंटरमिटेड रुक रुक कर, बस्ट उछलते थे, निकलते थे, ह्यूज फ्रैगमेंट्स बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, वाउटेड लाइक रिबाउंडिंग हेल, ऐसे ऊपर उठते थे जैसे ओला नीचे गिरकर ऊपर उठता है। रिबाउंडिंग हेल, हेल का मतलब हाँ ओला, वो जो गिरते हैं ओले, बारिश आती है तो जैसे बारिश में ओला जमीन पर नीचे गिरता है, गिरने के बाद वो एक खास सिमत में फिर दोबारा उठता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है पोइट का कि उस शगाफ के अंदर से पत्थर ऐसे आसमान की तरफ उड़ रहे थे। इतना जोरदार वो फौरा और चश्मा था कि वो पहाड़ों के नीचे इतने प्रेशर से आ रहा था कि वहां से बड़े बड़े पत्थर भी निकालता आ रहा था। और चेफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल
या ऐसे समझिए थ्रेशर के नीचे जब भूसे दाना नीचे गिरता है, गिरने के बाद दोबारा उठता है, वैसे ही यहां से पत्थर बाहर ऊपर की तरफ उठ रहे थे। दाना ऐसे नीचे आता है थ्रेशर से, ये जमीन से टकराया, टकराने के बाद फिर ऐसे उठा, दूर जाके गिरा। ये दोबारा उठने वाला सीन है ना, इस चश्मे के अंदर से पत्थर भी ऐसे नीचे से यूं ऊपर उठ रहे थे। ठीक है। और चेफी ग्रेन, या जैसे भूसे वाले दाने बिनीस नीचे द थ्रेशर्स फ्लेल, जब थ्रेशर नीचे उनको गिराती है वो उठते हैं। या जैसे ओला नीचे गिर के रिबाउंड होता है, ऊपर उठता है, ऐसे ही उस फुआरे के अंदर से पत्थर निकल रहे थे। एंड मिड दिस डांसिंग रॉक्स, और इन रक्स करती हुई चट्टानों के दरमियान, एट वंस एंड एवर, यकबार और हमेशा हमेशा, इट फ्लंग अप, बहता जाता, मोमेंटली लम्हा ब लम्हा, द सेक्रेड रिवर, ये मुकद्दस दरिया। वो कह रहे ये मुकद्दस दरिया रक्स करती हुई चट्टानों के अंदर से बहता रहता। चट्टानें रक्स करती हैं, चट्टानें अपनी जगह ठहरी हैं, दरिया जो है वो चट्टानों के अंदर मूव करता हुआ जा रहा है, लहरा कर ऐसे। तो लगता है राइटर को कि दरिया सीधा जा रहा है, चट्टानें रक्स करती हैं। आय हाय हाय, अगर दोहरे नशे किए हुए हैं ना अफीम के, क्या क्या सीन क्रिएट कर रहा है। 5 miles meandering with a mazy motion, 5 मील तक मेंडरिंग, लहराते हुए रास्ते पर, विद मेजी मोशन, बल खाते हुए जा रहा था। कौन? दरिया। थ्रो वुड, जाता था, जंगल में से गुजरता। एंड डेल, फूलों से लदी हुई वादियों में से गुजरता। द सेक्रेड रिवर रैन, ये मुकद्दस दरिया बहता था। देन रीड द कैवर्न्स मेजरलेस टू मेट, फिर ऐसी गारों में जा पहुंचता जिनको इंसान मैश नहीं कर सकता। एंड सैंक एंड थमल्ट टू अ लाइफलेस ओशन, और जाकर डूब जाता, थमल्ट शोर करते हुए, टू अ लाइफलेस ओशन, एक बेहिस समंदर के अंदर। एंड मिड दिस थमल्ट, और इस शोर के अंदर से, कुबलाई हेard फ्रॉम फॉर, कुबलाई खान सुनता था बहुत पहले के एंसेस्ट्रल्स, अबाओ-अजदाद की वॉइसेस, आवाजें, प्रोफेसिंग वार, जो उसे जंग के बारे में खबरदार करती। कुबलाई खान के बारे में मशहूर है कि ये जमीन पर लेटकर अपना कान जमीन से लगाता था और बता देता था कि दुश्मन कितनी दूर है और कितने लोग, कितने घोड़े आ रहे हैं, जमीन पर लरस से। क्लियर? और ये कुबलाई खान इस रिवर में जहां पर शोर उठता था, वहां से वो आवाजें सुनता था अपने बहुत पहले के अबाओ-अजदाद की, जो उसे जंग के बारे में खबरदार करते थे। प्रोफेसी का लफ्ज आया है। प्रोफेसी कौन करते हैं? प्राफ्ट करते हैं। पेशन गोया कौन करते हैं? पैगंबर किया करते हैं। तो आप देखें इस तरह से उसने पोइम को पुरस्कार बना दिया, उस दरिया को पुरस्कार बना दिया, कुबलाई खान को कोई देवता बना दिया उसने। आइए आगे पढ़ते हैं। द शेडो ऑफ द डोम ऑफ फ्लायर, क्या मतलब है इसका अहमद? द शेडो, साया किसका? हाँ, डोम ऑफ फ्लायर, उस महल के डोम, गुंबद का साया। फ्लोटेड मिडवाय, तैर रहा था, ऑन द वेव्स, लहरों के ऊपर, दरिया की लहरों पर गुंबद का साया तैरता रहता। वेयर वॉज हेयर द मिंगल्ड मयर, जहां से मिक्स आवाजें आती थी। फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, उस फौरे की आवाजें और गारों की आवाजें। गारों के अंदर से क्योंकि गुजरता है कौन? तैयब, दरिया। अच्छा, दरिया गुजरता है। इट वॉज अ मैरिकल ऑफ रेयर डिवाइस, इट वॉज अ मैरिकल ऑफ रेयर डिवाइस, ये एक नायाब फन का मोजा था। मैरिकल, मोजा,
रेयर डिवाइस, नायाब चीज का, एक नायाब चीज का मौजूदा था। क्या था? आ सनी फ्लायर डोम विद केव्स ऑफ आइस, एक तरफ धूप से चमकता हुआ महल, दूसरी तरफ बर्फ से ढकी हुई गारें। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन सीन था, बेहतरीन मंजर था, ये नायाब चीज थी। ये दो लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोएट ने इतना लिखा था कि उसका दोस्त आ गया उससे मिलने के लिए। एस.टी. कार्ल लिखता है अपनी बुक के अंदर, कहता है जब मेरा दोस्त आया मुझसे मिलने के लिए, जब वो वापस गया तो मेरा तखय्युल भी सारा वैनिश हो चुका था। फिर उसने वो फ्लो नहीं बना। अगर उसका वो दोस्त ना आता तो आपको शायद बहुत आला किस्म की कोई पोएम मिलती पढ़ने को। तो यहाँ पर उसने फिर कट ऑफ किया अपने तखय्युल को और एक नई बात इससे एडजस्ट कर दी, जोड़ दी, और पोएम यूँ कंप्लीट होती है। और पोएम कंप्लीट होती है और पोएम कंपीट करती है किससे? सोलिटरी रीपर से, विलियम वर्dsworth की सोलिटरी रीपर में पोएट ने कहा था कोयल से, कौन सी कोयल? जो हेब्रिडीज जजीरों में है। और अरेबियन सैंड्स के अंदर जो बुलबुल है, उसने कहा था उससे भी ज्यादा प्यारा गीत था उस लड़की का। यहां पर अब ये कहेगा कि मैंने भी एक लड़की का ख्वाब सुना है, एक लड़की का गीत सुना है। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। बिल्कुल वैसी बात करेगा। A damsel with a dulcimer, मैंने एक दोशीज़ा देखी, नौजवान लड़की देखी। with a dulcimer, जिसके पास डुलसिमर था, पियानो की किस्म का एक साज है। इतना जितना डाइस है मेरा, इतना एक तख्ता है, उसके ऊपर दो स्टिक होती हैं और टन 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 इस तरह करके बजाते हैं वो। मैंने एक लड़की को देखा जो कि अपने डोलिसिमर के साथ थी, एनावियन, अपने ख्वाब में। विलियम वर्dsworth ने कहा था मैंने लड़की को देखा अपनी आंखों से, कहता मैंने लड़की को देखा वो भी ख्वाब में। वंस आई सॉ, एक बार मैंने देखा था। इट वॉज एन एबिसिनियन मेड, ये हबशी लड़की थी, एबिसिनिया की लड़की थी। एंड ऑन हर डोलिसिमर शी प्लेड, और अपने डोलिसिमर के ऊपर वो डोलिसिमर को बजा रही थी, गीत गा रही थी। सिंगिंग ऑफ माउंट ओबरा, वो माउंट ओबरा का गीत गा रही थी। मुझे पता है वो क्या गीत गा रही थी। विलियम वर्dsworth को पता नहीं था कि वो क्या गा रही है। कहते मुझे पता है वो एक बुलंद पहाड़ का गीत गा रही थी, पहाड़ की तारीफ का गीत गा रही थी। जैसे हम कहें को सुलेमान का गीत गा रही थी, केटू का गीत गा रही थी। तो कहते माउंट ओबरा का गीत गा रही थी। Could I revive within me, ऐ काश के मैं अपने अंदर दोबारा याद कर सकूं हर सिम्फनी, उसकी रिदम को, एंड सॉन्ग, और उसके गीत को। ऐ काश के मैं उसके गीत को एक मर्तबा, उसकी रिदम को एक मर्तबा याद कर सकूं कि वो क्या गा रही थी। टू सच अ डीप डिलाइट दैट वुड विन मी, तो ऐसी गहरी खुशी मुझे जीत लेगी, ऐसी गहरी खुशी मुझे अपने काबू में कर लेगी। मैं खुशी से ऐसे मचल जाऊंगा, दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, कि इस बड़ी सुर की, ऊंचे सुर की म्यूजिक के साथ आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, मैं वही महल हवा में खड़ा कर दूंगा। दैट सनी डोम, वही धूप से चमकता हुआ महल, जोस केव्स ऑफ आइस, वही बर्फ से लदी हुई गारें मैं हवा में खड़ी कर दूंगा। एंड ऑल हु हियर्ड शुड सी देम देयर, और जो कोई भी वो गीत सुनेगा वो उस महल को, बर्फ से ढकी हुई गारों को उधर आसमान में देखेगा। एंड ऑल शुड क्राई बी अवेयर बी अवेयर, और तमाम लोग चीखने चलाने लग जाएंगे, कहेंगे खबरदार खबरदार हो जाओ, ख्याल करना इस शख्स का। हिज फ्लैशिंग आइज, इसकी चमकती हुई आंखें, हिज फ्लोटिंग हेयर, इसके फड़फड़ाते हुए बाल, वेव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, ये कोई देवता है, इसके गिर्द कोई सर्कल दे दो, कोई चीज पढ़कर बाइबल में से इसके गिर्द सर्कल दो, इसे दायरे के अंदर महदूद कर दो, क्योंकि ये कोई देवता है, ये कोई द्यो है, ये कोई स्पिरिचुअल कैरेक्टर है, ये कोई मैजिशियन है, और इसको कंट्रोल में करो। इसने इतनी बड़ी अहम चीज को हवा में खड़ा कर दिया है। एंड क्लोज योर आइज विद हॉली ड्रेड,
और मुकद्दस खौफ के साथ अपनी आंखें बंद कर दो, यानी कि ये कोई देवता है। फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैड फेड, और लोग कहेंगे इसने हनी ड्यू मुकद्दस शहद पिया हुआ है। हनी ड्यू, हनी शहद मुकद्दस होता है, ड्यू शबनम मुकद्दस होती है। इसने मुकद्दस शहद पिया हुआ है, एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और इसने जन्नत का दूध पिया हुआ है। ये कोई देवता है जो यहाँ पर आ गया है। ओके, नाउ ओपन योर इंग्लिश वर्स, इंग्लिश एक्यूट इंग्लिश वर्स। कहाँ से बेटा मैच कर रही है? उसने तो ऐसी बात, बड़े फेमस वर्ड है। डल्सिमर विद डल्सिमर वंस ऐसा, इनमें वियन वंस ऐसा। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि वो बहुत ही प्यारी आवाज़ है, और उसने कहा कि इतनी अच्छी आवाज़ है कि अगर मैं एक बार सुन लूँ उसे तो मैं बर्फ़ की गारें, धूप से चमकता हुआ महल और वो रिवर, उसके साथ तमाम ज़ेनाडू का एरिया मैं हवा में खड़ा कर दूंगा। तो किसकी इमेजिनेशन और किसकी ज़रा ताकतवर है, कौन सा गीत, किसने गीत ज़्यादा अच्छा सुना है? एसटी कॉलेज का लगता है कि पता नहीं कैसा गीत सुन रखा है जालिम ने, कि कहता है, फिर ये भी कहता है अगर वो गीत जो जो सुनेगा वो उस चीज़ को देखेगा। तो सिर्फ ये भी नहीं कि मुझ तक महदूद है। पेज नंबर 68, कंटेक्स्ट। कुबलाई खान इज एन अफीम फैंटेसी। कुबलाई खान एक अफीम फैंटेसी है, यानी कि ऐसी स्टोरी है जो अफीम खाकर कही जाए या लिखी जाए। एसटी कॉलेज के बारे में मशहूर है कि his sleeping hours were more important than his waking hours। इसके जागने वाले घंटों से ज़्यादा अहम इसके सोने वाले घंटे थे, जिसमें ये नींद में होता था। तो उस वक्त ये तख़य्युल बनाता था, देखता था। इसकी पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर आप पढ़ लें, आप कहें कि इंतहा हो गई है इमेजिनेशन की। एक शिप में आपको बिठाएगा और कहाँ लेकर जाएगा, हाँ कहाँ ले जाएगा, पूरे समंदर में ऐसे ऐसे सीन दिखाएगा, आप कहेंगे, हैरान हो जाएंगे कि इसकी सोच कैसे है। आसमान में पहाड़ खड़े कर देगा और उसमें चांद भी होंगे, और उन पहाड़ों में से पानी भी बरस रहा होगा, बारिश भी हो रही होगी, ठीक है। बाज़ाहिर वो बादल होंगे, लेकिन लगेंगे ऐसे जैसे पहाड़ चांद के करीब आ गए, दोनोदोनों तरफ से बारिश भी हो रही है, चांद भी चमक रहा है एट द सेम टाइम। इसकी इमेजिनेशन इस तरह की होती है। आ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, ये ख्वाब दर ख्वाब है, ख्वाब के अंदर ख्वाब है। द मजेस्टिक पोइट ऑफ नेचर इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सीज एन एबिसिनियन गर्ल। इस फितरत के अजीम पोइट ने अपने तख़य्युल के अंदर देखा एक एबिसिनियन गर्ल को, एक हबशी लड़की को, हु इज़ प्लेइंग ऑन हर डोलिसिमर, जो अपने डोलिसिमर के ऊपर गीत गा रही है, एंड सिंग्स अ कैप्टिवेटिंग सॉन्ग, और बहुत ही दिलकश। द पोएट क्लेम्स दैट, पोएट कहता है, इफ ही कुड रिवाइव द मिस्टिक मेलोडी ऑफ दिस सॉन्ग, अगर वो इस गीत की वो पूरे इसरार रिदम को याद कर ले, ही वुड बिल्ड द सेम सुपरनेचुरल प्लेयर डोम, वो खड़ा कर देगा वैसा ही प्लेयर डोम। इशरत कदा, इशरत किसे कहते हैं? लुत्फ को, मज़े को, मौज मस्ती को। इशरत कदा मौज मस्ती की जगह, जैसे होता है इबादत कदा, इबादत करने की जगह, ठीक है। और होता है मैं कदा, शराब पीने की जगह, ठीक है। हमारे पास सिर्फ कद्दू होते हैं ना, हाँ, नसीब है कि नसीब की बात है मेरा बेटा,
ठीक है, गम भुलाने के लिए हमारे पास कद्दू हैं, ठीक है, उनके पास उधर इश्रत कदे भी हैं, मैं कदे भी हैं, जुल्म की इंतहा है यार। अहमद भाई आपके मतलब की बात थी। इन द एयर, और उसने इश्रत कदा, वो कहता है मैं खड़ा कर दूंगा, वो जादुई इश्रत कदा खड़ा कर दूंगा हवा में। विच वॉज वंस इन पोजेशन ऑफ गॉड लाइक कुबलाई खान, जो एक बार देवता नुमा कुबलाई खान की मलकियत में था। क्या? इशरत कदा। इन मिस्टीरियस ज़ेनाडू, उस पुरस्कार ज़ेनाडू के अंदर। मल्टी एक्सप्लेनेशन, these romantic lines take us into an utterly new world. ये रोमानवी लाइंस, खूबसूरत लाइंस हमें ले जाती हैं एक बिल्कुल नई दुनिया में, विच इज़ घोस्टली एंड पजलिंग, जो कि जिन्नाती है और हैरान परेशान कर देने वाली। सुपर नेचुरल, एक जादुई जगह है। It is a brave new world like one finds in Shakespeare's Tempest. ये एक ऐसी दुनिया है जैसे एक आदमी शेक्सपियर की पोएम टेम्पेस्ट में पाता है, और वाल्टर डी ला मेयर्स थेटरी, या वाल्टर डी ला मेयर की थेटरी में पाता है। बट these lines achieve their effect mainly by, लेकिन ये लाइंस अपना असर हासिल करती हैं कैसे? far reaching suggestiveness, फार रीचिंग सजेस्टिवनेस। इसका मतलब होता है पोएट आपको ऐसी बात कहे कि आपका जहन खुद सोचना शुरू कर दे। कितनी पुरस्कार जगह थी, पोएट ने आपको नहीं बताया कि वहाँ पर अंधेरा है, वहाँ पर नमी है। उसने कहा ऐसा लगता है जैसे कोई वहाँ पर औरत बैठी अपने किसी अफरीत महबूब की याद में रोती रहती हो। ये सीन सोचकर हमें फौरन ही ख्याल आ जाता है कि कैसे वो तन्हा बैठी होगी, कैसे सुबह से शाम तक वो इंतज़ार करती होगी, कैसे वावेला करती होगी, पूरा एटमॉस्फेयर किस तरह पुरस्कार उजता होगा, कितना डर, खौफ और मुकद्दस वहाँ पर एटमॉस्फेयर होगा। इसे कहते हैं फार रीचिंग सजेस्टिवनेस, कि पोएट जो है आपको सिर्फ जहन में एक बात कहता है और आप खुद तखय्युल बनाना शुरू कर देते हैं। कमेंट्स देखें। बेटा आपसे अक्सर सवाल में ये कहा जाता है कि कुबलाई खान और टेटरी को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें। और क्या हाल है आपका? समझ आ गई है? या चाय पिलाऊं या बोतल? एडे सियाने बच्चे आ गए। कमेंट्स, द पोएम इज रिमार्केबल फॉर कॉलेज सेंस ऑफ ब्यूटी। पोएम बड़ी कमाल है, क्यों? कॉलेज का सेंस ऑफ ब्यूटी अच्छा है। इन वर्ड्स एंड साउंड्स, अल्फाज में भी और आवाज़ में भी। हैज़ विविड इमेजिनेशन, तखय्युल उसका बहुत क्लियर है, विविड है। आ रिच एक्सप्लेनेटरी पावर, और उसके पास ज़बरदस्त एक्सप्लेन करने की ताकत है। किसको? आप सुपर नेचुरल थिंग्स, सुपर नेचुरल जादुई चीज़ों को। देव को कैसे इस्तेमाल किया उसने पोएम के अंदर, उस औरत को, काज़म को, तमाम चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करता है, चांद को कैसे इस्तेमाल करता है। एंड कम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड कंट्रोल इन द रिदम एंड साउंड, और साउंड और रिदम के दरमियान एनर्जी और कंट्रोल का कम्बिनेशन है। जोर भी है पोएम में, ताकत भी है, कंट्रोल भी है। आप पे से बाहर भी नहीं हो जाता, लेकिन पोएम ऐसे कहती है कि टकरे मारती है कि मुझे छोड़ दो, है ना? है ना? क्या तो समझ ही कोई नहीं है कि है कि। मज़े की बात यह है कि मैंने कुबलाई खान, ये हमारी एफए में भी हुआ करती थी, आपकी नहीं है। अच्छा, तो टीचर पढ़ाते थे। कभी किसी टीचर को ये पता नहीं था कि इसमें पोएट आंधा की ये, ठीक है, तो कहते नहीं पंजाब में
की आंदा है, आंदा की है कि कहता क्या है ये समझ नहीं आती थी। वो टीचर्स को भी पता नहीं है, मोस्टली टीचर्स को पता नहीं है कि कहता की है। ठीक है, वो पहली पोएम जो शुरू करते हैं कि ये चीज थी, टीचर खुद ही उसमें गुम हो जाता है कि भाई ये चीजें तो बयान कर दिया, अब कहता की है, आगे तो कोई और बात शुरू हो गई है, लेकिन उसके जोड़ हैं, जोड़ तोड़ हैं उसके। बहुत मुश्किल है, मेरे ख्याल में पूरी आपकी पोएट्री में सबसे मुश्किल यही है। ठीक है, तो भले लगते हैं मुझे तूफानों से लड़ते हुए बादबां, हवा के रुख चलती कश्तियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है, फिर आप में और बाकी अकेडमी में बैठे हुए लोगों में फ़र्क क्या है? अगर आप भी अंधे हैं, वो तो हैं ही, अगर आपको भी नहीं समझ आती और यहाँ बैठकर भी, तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क है? सर समझ आ गई है, लेकिन जरा वेडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है। सर पहले वो देखते कि औरत वहाँ पे रो रही है, फिर वो उसको गाना पहले वो मेहनत तामीर करता है, फिर वो बेटा वो और लड़की थी, वो और थी जो दियो महबूब के लिए रो रही थी ना, पता नहीं दियो ने की कीता सी, वो सानू समझ नहीं आई। आगे बढ़े, अब मुझे बातों में ना लगे मैंने ये कंप्लीट कर ये देखो मेरा बेटा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। कॉलरेज इमेजिनेशन रिजेंबल्ड द विंग्स ऑफ अ हॉक। कॉलरेज का तखय्युल ओकाब के परों से मिलता जुलता है। इट इनेबल्ड हिम टू सोर। ये पर उसे इस काबिल तो करते हैं कि वो ऊंची परवाज भरे। जो नॉट टू रन, लेकिन उसे दौड़ने नहीं देते। यानी कि कॉलरेज एक बार अपने प्रवास शुरू करता है, अपनी बात शुरू करता है, तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, वो बुलंद प्रवास भरता जाता है, वो नीचे आता ही नहीं है, ज़मीनी बात करता ही नहीं है। कुबलाई खान इज एन ऑफ हिम फैंटेसी। आप बताएं बेटा इसका क्या मतलब है? गुलाम, क्या मतलब है इसका? क्या बात है, आज मायूस क्यों हो? मुझसे चोरी चोरी तुमने मैसेज पढ़ा था, मुझे इतना याद है। उसने कहा हुस्न से चूक हुई इसकी है तारीख गवाह, इश्क से भूल हुई इसकी है ये मुझे याद नहीं। इतना तो हमें याद है इतना तो मुझे याद है कि आपने मैसेज पढ़ा था, फिर आप डिम हो गए, ये पता नहीं क्यों हुए हैं। अभी किताब के पीछे अच्छा रिकॉर्डिंग करने लगा, ओके, इसीलिए मैंने आपको रोका नहीं। तो ये पैराग्राफ सेम है, ओके। दिस रोमांटिक पोएम टेक्स अस इनटू एन अटरली न्यू वर्ल्ड। हाँ मेरा बेटा, एक्सप्लेनेशन हो गई? अच्छा आगे चलें। रोमांटिसिज्म, ओके, रोमांटिसिज्म को आज समझ लें, वैसे ही समझ लें, चलो हमारे थोड़ा सा इज्जत करते हुए समझ लें आप, ठीक है। रोमांटिसिज्म क्या चीज़ होती है? 19वीं सदी के स्टार्ट में ये शुरू हुई है और इसके बानी दो थे, एक एस.टी. कॉलेज, दूसरा विलियम ववाथ। रोमांटिसिज्म की मेन खूबी ये है कि दूर दराज के अनसीन और अनहेयर्ड आपको मनाजिर दिखाते हैं, सुनाते हैं। इसमें फेयर भी होता है, मिस्ट्री भी होती है इसके अंदर, और इसमें कॉमन मैन की बात भी होती है। रोमांटिसिज्म एम्फसाइज्ड सेंसिबिलिटी। रोमांटिसिज्म जोर देती है एहसास को, समझबूझ को, सेंसिबिलिटी। द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स का फ्री एक्सप्रेशन, जो मन में आता है कह दो। नेचर, फितरत की बात करनी है। एंड अनयूजुअल थिंग्स, और गैर मामूली चीज़ों की बात करनी है। द होल पोएम इज फुल ऑफ रोमांटिक एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। पूरी पोएम भरी हुई है रोमांटिक और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स से। एज सैक्रेड रिवर एल्फ रैन थ्रू डीप केव्स, जैसे सैक्रेड रिवर एल्फ जाता है, गुजरता है कहाँ से? डीप केव से। ब्राइट गार्डन्स, शाबाश, यहाँ पर ब्राइट गार्डन्स हैं। वाइंडिंग स्ट्रीम्स, और यहाँ पर बल खाती हुई लड़कियां हैं, नदियां हैं, नदियां हैं अहमद भाई, नदियां हैं।
अहमद भाई ट्रीज विद स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स, और दरख्त हैं जिसके ऊपर खुशबूदार फूल लगे हुए हैं। सनलिट प्लेसेस, धूप से चमकती हुई जगह हैं। सनी प्लेयर डोम है विद केव्स ऑफ आइस, और यहाँ पर सनी प्लेयर डोम और केव्स ऑफ आइस भी है। ये केव्स ऑफ आइस क्यों है प्लेयर डोम के साथ? अगर वहाँ पर शराब की महफिल हो तो बर्फ़ की ज़रूरत ना पड़े, बर्फ़ दस्ती पकड़ लें हैं चिमटे के साथ। कबलाई खान कहे तो चिमटे में थोड़ी बर्फ़ ले आना, बर्फ़ नारी बर्फ़ की टुकड़ी ले आना, और जनाब नेचुरल बर्फ़। इसलिए वहाँ पर यह शीरत कदा बनाया गया था, और कोई मकसद नहीं थी। ठीक है, हमें बर्फ फ्री मिल जाती थी। बर्फ़ ही तो असल चीज़ थी, वो नहीं मिलती थी, फ्रिज भी नहीं था। ठीक है। An Abyssinian maid playing on her dulcimer and singing, और एक और मैजिकल भी चीज़ है कि एक एबिसिनियन मेड है, वो अपने डोलसिमर पर गीत गा रही है, डोलसिमर बजा रही है। द पोएम इज रिमार्केबल फॉर कॉल्ड एज सेंस ऑफ ब्यूटी, आई थिंक दैट इज द सेम वन। लास्ट मेरे ख्याल में एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं है। He packed the poem with fantastic and dream-like atmosphere. उसे पूरी पोएम को तखय्युल और ख्वाब जैसे एटमॉस्फेयर में पैक किया हुआ है। ओके, नाइस ऑफ यू।